Welcome everyone. Today in this video, we will determine the phreatic line when the dam section is homogeneous and provided with a horizontal filter. Phreatic line means सीपेज लाइन को हमने determine करना है. Suppose ये एक डैम है और इस डैम में ये horizontal filter provide करना है. तो हमें determine करना है कि सीपेज लाइन की प्रोफाइल क्या होगी, कैसे बनेगी. After determination of phreatic line, we can easily calculate the discharge passing through this dam. So first of all, we should know how to draw this diagram. So I will tell you by step that how to draw this diagram. Then we can determine the equation of base parabola, and then we can calculate the discharge passing through the dam. So first of all, we are drawing this diagram. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अर्थ सरफेस है और इस डैम को बनाना है. First of all, then show this water surface and this head is suppose H. Now this horizontal filter, the starting point of this filter is F, which is the focus of the parabola, and the end point of this filter is M. Now according to Casagrande, the seepage line for most of its length coincides with the base parabola. The curve shown here, AIJC. This AIJC curve is the base parabola, and the BIJC curve is the seepage line. So you can see here that this seepage line is coinciding for most of its length with the base parabola. So when we extend this base parabola towards the water surface, then it intersects the water surface at point A. Now in the upstream side, some modification has to be done for seepage line. This BI curve, this is the BI curve. This BI curve should be drawn by freehand sketching. ये freehand sketch करके बनानी है BI curve in such a way that the seepage line becomes normal to the upstream face GB of the dam. कि जब ये एंट्री पॉइंट पे ये कर्व हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तब ये कर्व जी बी फेस ऑफ डैम, दिस इज़ द अपस्ट्रीम फेस, जी बी फेस ऑफ डैम, इसके साथ ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए. और जब ये कर्व इस बेस पैराबोला के साथ मिले, तब आई पॉइंट पे इट शुड बी टेंजेंशियल. एंड व्हेन दिस seepage line exits here at this point, then it should drop vertically in the filter. Now by knowing the coordinates of this point A and by considering this focus as the origin, then we can easily plot this base parabola AIJC, and this is the parabola extended. The horizontal distance of point A from focus is B, and this G dash point is the vertical projection of this point G on the upstream face. So Casagrande has shown that the distance AB is equals to 0.3 times G dash B. G dash B is this distance. तो ये जो AB distance होगा, ये ए बी डिस्टेंस जी डैश बी डिस्टेंस का 0.3 टाइम्स होगा. नाउ द बेस पैराबोला कैन बी ड्रॉन बाय ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला. फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, that any point on the parabola is equidistant from focus as well as from directrix. ये पैराबोला की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी कोई पॉइंट है, जितना उसका डिस्टेंस फोकस से होगा, उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P। इस P पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस फोकस से है सेम उतना ही डिस्टेंस होगा इसका इस डायरेक्ट्रिक्स से। ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। नाउ विद पॉइंट A एज द सेंटर एंड AF एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन AB प्रोड्यूस्ड एट E। अब क्या करना आपको, A पॉइंट को तो सेंटर मानना है और AF को रेडियस मानना है। तो आप एक आर्क लगाओगे, ये आर्क कहाँ कट कर रही है, इस AB लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद अब ये कर्व इसको कट करिए इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज E। नाउ ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट E and this tangent will meet the horizontal filter at point D. This ED line is the directrix of the parabola, and this C point, this is the you can say apex of the parabola, or you can say the vertex of parabola. This is C point, is midway between F and D. ये जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का, ये F और D पॉइंट के सेंटर में होगा। नाउ इसी तरह से ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स, जैसे हमने ये P पॉइंट लिया है, इसी तरह से कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं हम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, उनको यहाँ लोकेट करेंगे। देन आफ्टर जॉइनिंग दीज ऑल पॉइंट्स वी कैन डिटरमाइन द दिस बेस पैराबोला। नाउ इक्वेशन ऑफ बेस पैराबोला। Equation of base parabola. Consider any point P on base parabola. Consider any point P on base parabola with coordinate x, y। इधर डायग्राम में देखने पे पता चलेगा हमें। इस डायग्राम में मैंने इस बेस पैराबोला पे एक पॉइंट लिया है, दिस इज पॉइंट P, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब ये जो फोकस है F पॉइंट, इसको हमने ओरिजिन माना है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज x एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो F से P पॉइंट का x डिस्टेंस कितना होगा और y डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x एंड y। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। नाउ टेकिंग फोकस F as origin, the equation of parabola can be written as under root of x square plus y square is equals to x plus fd। अब ये इक्वेशन कैसे लिखी है हमने, कैसे इक्वेट किया है इन दोनों चीज़ों को, तो ये देखना हमें। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या कहती है कि कोई भी पॉइंट है उसका जितना डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। तो यहाँ देखिए ये P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो अगर हमें फोकस से इसका डिस्टेंस निकालना हो तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जिससे ये डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एफ डी। एफ डी डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज रिटन एज s। So we can write here x square plus y square equals to x plus s, because fd is the focal distance, और focal distance को represent किया है हमने s से। Now the coordinates of points A.
coordinates of point A with F as focus. F पॉइंट को फोकस मान के या ओरिजिन मान के, F पॉइंट को ओरिजिन मान के अब हमें ये फाइंड करना है कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे. F जो है ये पॉइंट, दिस इज़ द ओरिजिन, तो X में कितना है B और Y में कितना है H. तो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके B, H. देन इक्वेशन ऑफ बेस पैराबोला फॉर ए पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ बेस पैराबोला. तो इक्वेशन में हमने लिखा था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स की जगह हमें b पुट करना है और y की जगह h. सो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ था x प्लस एस, तो x कितना है अपना b प्लस s को s ही लिखेंगे. नाउ s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस b. Now seepage discharge through body of dam. Seepage discharge through body of dam. Let Q be the discharge per unit width of dam. So now from Darcy law we can we know that Q is equals to K into I into A, and here I is dy by dx, and area is, height is y, and per unit width के लिए 1 हमने कंसिडर किया. सो हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई. सो दिस इज इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस एस, ये इक्वेशन थी. यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा. नाउ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस एस स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. दिस इज ए प्लस बी स्क्वेयर. तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2xs माइनस एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एस स्क्वेयर प्लस 2xs. नाउ y इक्वल्स टू एस स्क्वेयर प्लस 2xs, और ये स्क्वेयर इधर आके इसका अंडर रूट हो जाएगा. अब हमें इसका dy बाई डी एक्स करना है, तो अंडर रूट को हटा के हम इसकी पावर कर सकते हैं 1/2. y इक्वल्स टू एस स्क्वेयर प्लस 2xs और इसकी पावर 1/2. अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स. तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आती है 1/2, देन एस स्क्वेयर प्लस 2xs, देन पावर में एक कम, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 2s. नाउ 1/2 एस स्क्वेयर प्लस 2xs, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 इंटू 2s. 2 से ये 2 कट गया तो dy बाई डी एक्स क्या बचा, एस स्क्वेयर प्लस 2xs पावर -1/2 इंटू s. अब इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1. सो q विल बी इक्वल्स टू k इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे एस स्क्वेयर प्लस 2xs पावर इज -1/2 इंटू s,
और इनटू था y, तो y कितना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2xs। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k इंटू एस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 2xs। अब ये वाली जो टर्म है इसकी पावर है -1/2, तो जब ये डिवाइड में जाएगी नीचे तो पावर प्लस में हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2xs, और पावर हो जाएगी +1/2, तो 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से q इक्वल्स टू k इंटू एस। So this is the discharge passing through the body of them. Thank you.